Hi students, welcome to my channel English language learning. Today we are going to, as we are learning a very simple topics through this channel. I'm trying to make more simple and simple videos for your learning, and I hope you are learning better one. Today we are going to learn a basic one topic, which is sometime most of the students are feeling that it's a difficult topic, and most students have requested me to make the video on this one topic. So let's see which topic we are going to start today. Today's topic is the first of all, I want to tell you that communication is language. The basic the function of a language is there are 7 functions near about the language, and out of that the most important is communication. Okay, when we are communicating, that time we have to use simple types of sentences and various types of structures in this. Okay, whenever you are using most complex sentences, that time it will make the complex the communication between them. Today we are going to see such one simple important topic, which is most of the students don't understand how to change it there. Okay, if you are learning for the exam, then please stop it. Don't learn any language or any topic for the exam only. Okay, don't be the exam oriented. You have to be knowledge oriented and daily routine, your regular daily routine oriented and life oriented for this language skills. Okay, so today's our topic is direct and indirect speech, which is most affectionate, and sometimes it is a difficult topic for the students, but believe me that it's very easiest and very fantastic topic to understand. So let's going to start this one. Be ready with your note and pen. You have to take the without the note, I hope that without the note don't learn any topic. You have to make the notes for this one. Which contents we are going to see? The first, introduction. What is the introduction? What is the introduction will be there? Conversation. What is the conversation? Reported statements. Then tell how to use their reported questions, how to ask the questions, beginning with the questions words. Then these are the topics: reported command, request, how to change in this, recorded amizar, and last one is the mixed types. Which are the mixed type content in this? So each and every type we are going to learn through the chapter wise. I hope you will understand it very well. The introduction is what? First, you have to, already I told you that without understanding the topic or without any previous or good knowledge of the topic, don't learn anyone. Okay, before you learn, you have to understand the basic topic of that. उसका basic क्या है, उसका base क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, इट्स मीन्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड what the first, what is a direct speech. So direct speech is actual speech between the two person. Okay, when two people are talking each other face to face, that is a direct speech. How it is direct speech? It is always quoted into double inverted comma. When you are writing, when you are reading the textbook, that time double inverted comma, we are using these words, we using his words. Okay, as it is, for example, when I am saying that I am the clever, okay, I am said myself, I am the clever. Everyone can see this sentence. Okay, one student is saying that I am clever, दैट टाइम इट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. अब वो एक स्टूडेंट जो है, ए नाम का जो स्टूडेंट है, वो बी नाम को बोल रहा है कि मैं क्लेवर हूँ, तो उसका डायरेक्ट स्पीच है. किसी और ने उसे बताया नहीं, किसी और का वो सेंटेंस नहीं है, वो उसका खुद का सेंटेंस है. एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? तो इनडायरेक्ट स्पीच ये होता है कि अगर वो आपका सेंटेंस जो है वो तीसरा पर्सन कोई सुनता है या फिर दूसरा पर्सन सुनता है, सुनने वाला तीसरे को बताता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ए और बी अगर दोनों से बात कर रहे हैं, तो ए और बी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है वो बी या सी, थर्ड पर्सन डी को जाके बताता है, या फिर बी सी को बताता है. तो वो कैसे बताएगा? तो इसमें कोई कन्वर्सेशन कोटेशन वगैरह नहीं होता है, थर्ड पर्सन होता है उसमें यूज़ करने वाला, जो सुनने वाला होता है या फिर दूसरा सुनने वाला तीसरे को बताता है उसके बारे में. तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें वो जो बताने वाला है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली बताएगा. फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले वाला सेंटेंस बताया, आई एम द क्लेवर, तो वो तीसरा पर्सन जो है वो बताता है कि ही सेड, उसने बताया कि वो क्लेवर है. ठीक है, वो क्लेवर है, वो किसने बताया?
तीसरा पर्सन चौथे को बताता है या फिर दूसरा तीसरे को बताएगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन के उसी के वर्ड्स में वो नहीं बताएगा। अगर वो ये बताएगा, फॉर एग्जांपल अगर ए एंड बी बोथ आर टॉकिंग देयर, ए ने बताया कि आई एम द क्लेवर, ओके, अब बी सुनता है तो बी ये बताएगा कि वो लड़का वो क्लेवर है। अगर वो ये वही सेंटेंस वैसे दोहराएगा तो वो उसके बारे में हो जाएगा। अब उसको बताना है ए के बारे में, तो ए के बारे में बताने की वजह से दैट पर्सन हैज़ गिवन द एक्सप्लेनेशन दैट दिस पर्सन इज़ क्लेवर, ओके, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू about him. How to make the indirect and direct speech into the direct speech into the indirect speech? Some rules are there. With the rules, it's very to transfer them into mechanic them. So which are the rules? Let's see from the next slide. How to change direct speech into the indirect speech? When द स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। द फर्स्ट वन इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच मतलब दैट द पर्सन हैज़ टॉक्ड, द पर्सन हैज़ गिवन द एक्सप्लेनेशन इन कोटेशन वर्ड्स, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिपोर्टिंग स्पीच। एंड द पर्सन हु इज़ टेलिंग टू हुम, कौन किससे बोल रहा है, ये जो सेंटेंस है कोटेशन के बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाला सेंटेंस है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब। वो डिसाइड करता है कि उस स्पीच में कौन सा टेंस आने वाला इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ने का काम ये दैट करता है। वी हैव टू यूज़ दैट टू जॉइन देम, ओके। जैसे कि ही सेड, ये जो है ही सेड ये रिपोर्टेड वर्ब है, और द गेम इज़ कटिंग ये जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, क्योंकि ये स्पीच बोला गया है तो ये वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब, ये टेंस डिसाइड करेगा, ओके। उसने कहा कि वो गेम दैट गेम वॉज एक्साइटेड, गेम इज़ एक्साइटिंग। अब ये सेंटेंस दैट लगा के हम अगर रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते तो ये सेंटेंस ऐसा आएगा, ही सेड दैट द गेम वॉज एक्साइटिंग। अब ये वॉज कैसे आया? अब यहाँ पे ही सेड ये पास्ट टेंस में होने की वजह से ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट टेंस में क्यों जाएगा? बिकॉज ही सेड, उसने कहा। अब ये सेंटेंस उसने उस टाइम में कहा था, उसके लिए अब टाइम हो गया, वो सेंटेंस पास्ट में चला गया, वो तो रिटर्न वैसे नहीं आएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दैट, अब इसमें ये होता है कि ही सेड ये पास्ट में होने की वजह से इसको भी पास्ट में ही बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। विच आर द एक्सेप्शंस दैट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट मोमेंट। इसमें कुछ बदलाव नहीं होते कभी कभी। अब कब नहीं होते वो भी रूल्स हैं। तो ये पहला रूल है कि हमें दैट यूज़ करना होता है ज्वाइन करने के लिए दोनों सेंटेंस में। वो दैट कब लगता है? उसका कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये दोनों जो निकल जाते हैं, इन दोनों को निकाल देना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव टू यूज़, अगर सेड की जगह, सेड जो है सेड की जगह अगर सेड टू होता तो सेड टू की वजह को बदल के हमें टोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होता है। ये पहले बेसिक एक एक रूल्स है, वो आपको समझने हैं। अगर आप एक एक समझ जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू। फर्स्ट, अब ये सी जो है, बी वाला समझ, ए वाला समझ में है। ए में जो है दैट यूज़ करना है, बी में अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और बाकी कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउंस में भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन में क्या चेंज होंगे, ये सारे चेंजेस होते जाएंगे। आप स्लाइड को वहाँ से एक स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो। तो आई का हो जाएगा ही शी, वी का हो जाएगा दे। ये रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस में ये सब बदलाव हो जाएंगे। ये बदलने ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे प्रोनाउन जो हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो सारे हैं तो वो बदलते जाएंगे। एक्चुअली ये सारे फर्स्ट पर्सन है, इनको हमें बदलना होता है सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, ठीक है। आई विल बी चेंज इनटू ही शी, दे विल, वी विल बी चेंज इनटू दे, यू विल, यू का चेंज हो जाएगा ही शी दे। ये सारे चेंजेस होंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे ना हम, सारे चेंजेस आप ध्यान में रखिए और यू हैव टू लर्न देम ऑल। चौथा रूल हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का टेंस जो है वो बदलना पड़ता है। अब वर्ब का टेंस कैसे बदलेंगे? तो अगर डायरेक्ट स्पीच, वो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है, वो सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस होगा तो यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट प्रेजेंट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे। इसका मतलब यह है कि पास्ट वाला कोई बदलेगा नहीं, पास्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। पास्ट में जो कुछ बदलना नहीं होता है। देन वर्ब्स आर नॉट चेंज इन यूजुअल वे। कुछ टाइम ये चेंजेस नहीं होते हैं। कहाँ चेंज नहीं होता? फर्स्ट,
ये टेंस कब नहीं बदलेगा? एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ कब होता है? तो एक किसी व्यक्ति का स्वभाव होगा, किसी व्यक्ति का विशेष गुण होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ताजमहल होगा या कोई ऐसी चीज़ है जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहने ही वाली है, वो बदलेगी नहीं। तो ये चेंज बदलेंगे, ठीक है, ये चेंज जो है वो नहीं बदलेंगे। कोई भी चीज़ वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहने वाली है, तो दैट टाइम वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस। सेकेंड, अ डेफिनेट पास्ट टाइम। अब यहाँ पहले जो कोई पास्ट टेंस जो पहले से यूज़ किया हुआ है जो डेफिनेटली है तो वो चेंज नहीं होगा। थर्ड थिंग, अगर वहाँ पे मस्ट यूज़ किया है तो वी डोंट हैव टू चेंज इट, वी डोंट वांट टू और वी डोंट रिमेन अनचेंज, वैसे का वैसे रहेगा। अगर वो किसी चीज़ को मस्ट डिनोशन किया हुआ है, डायरेक्शन किया हुआ है तो वी हैव टू कीप इट एज इट इज़, उसे बदलना नहीं है, ठीक है। चौथी चीज़ आपको बदलनी नहीं है। दूसरी चीज़, वुड हैव टू अगर होगा, ओके, चेंज टू वुड हैव टू इफ़ इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी इन द फ्यूचर। अब ये मस्ट को कब बदलेंगे? पहली बात तो उसे बदलना नहीं है। कब बदलना नहीं है? जब वो ऑब्लिगेशन होगा, कंपल्सरी कुछ होगा तो उस टाइम उसे बदलना नहीं है, ठीक है। तो बदलेंगे कब? अगर सेंटेंस ऐसा कुछ दिखाता है कि वो चीज़ आपको फ्यूचर में करनी है, करनी ही पड़ेगी, अगर होगा तो मस्ट और नॉट विल चेंज। अगर ये ऐसी चीज़ है कि फ्यूचर में तुम्हें करना चाहिए, ऐसा कुछ सजेस्ट किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, तो दैट टाइम वी हैव टू चेंज वुड हैव टू, ओके, उस टाइम वो बदलेगा। चौथी चीज़ आपको बदलनी है, वी हैव टू बी रिमेन। हैव हैड अगर होता है, हैव हैड या फिर हैड, ये अगर चेंज उसमें चेंज होगा तो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैव हैड होगा या फिर हैड होगा तो उसको हैड में ही बदलना है। अब ये हैड क्यों होगा, डबल क्यों हो गया? तो हैड जो है यहाँ पे, हैव का मतलब होता है होना, मेरे पास है, ओके, आई हैव अ पेन, तो ये हैव इज़ अ वर्ब। एंड दूसरा जो हैड है वो हैड थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट टेंस है, सॉरी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। हैव हैड ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होता है और हैड ये परफेक्ट पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट में ही परफेक्ट पास्ट में बदल जाएगा, इसलिए वो हैड होगा। हैड मीन्स व्हाट? V3, ओके, एक V3 हैड जो है वो V3 है और वो हेल्पिंग वर्ब है, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, तो वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट पास्ट टेंस में बदलेगा। देयरफॉर वी हैव टू चेंज हैव हैड इनटू हैड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव टू यूज़ अगेन वुड, शुड और टू। अगर ये होते हैं सेंटेंस में तो उनको हमें बदलना होता है हैड बेटर, माइट और यूज टू। अगर ये सारे चेंजेस हमें होते हैं, वुड, शुड और टू, हैड बेटर, माइट, यूज टू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारे अगर होते हैं तो उनको वैसे का वैसे ही रखें, बदलेगा मत, उनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं एंड दे प्रेजेंटिंग द पास्ट टेंस ऑलरेडी, ओके, वो पास्ट टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट डोंट ट्राई टू देम चेंज, ठीक है। और सिक्स रूल ये है कि इन्फिनेटिव्स जो होंगे, इन्फिनेटिव्स को बदलना नहीं है। अब कौन से इन्फिनेटिव होंगे? तो इन्फिनेटिव्स जो होंगे टू वगैरह, ये इनको बदलना नहीं होता है। सेवेंथ रूल वी हैव टू चेंज, वी हैव टू यूज़ दैट विल, शाल विल अगर होता है तो ये ऑलरेडी वो फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनके लिए शाल विल के लिए हमें एक वर्ड यूज़ करना होता है, दैट इज़ वुड। तो उसके लिए वुड यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अनलेस शाल इज़ यूज टू मेक द रिक्वेस्ट फॉर, अगर कोई रिक्वेस्ट होता है, इंस्ट्रक्शन होता है तो चेंज इनटू शुड, ओके। शाल विल ये प्रेजेंट करते हैं फ्यूचर को, ये पास्ट में हमें चेंज करना है तो वी डोंट हैव टू यूज़ परफेक्ट पास्ट और समथिंग, वी हैव टू यूज़ वुड ऑन द प्लेस ऑफ shall will. And again, if shall is saying the request to the instruction or it is showing the instruction in the future, that time we have to use a should for this one. Should already we use for the, हमने मॉडल ऑक्सिलरी में देखा है कि should जो होता है किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर सजेशन, ओके, और ये सजेशन हमें चेंज करना होता है should में। तो नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल्स है, एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस एंड सम वर्ड्स, ये जो इस तरह से बदलेंगे तो उनको हमें ये चार्ट के वाइज बदलना होता है। हियर का हो जाएगा देयर, दिस विल बी चेंज टू दैट, दिस विल चेंज टू दोज, नाउ देन, और टुडे विल बी चेंज टू दैट डे,
दिस वीक इज़ दैट वीक, ये सारे जो है एक साइड भी जो है डायरेक्ट स्पीच जो है इस सारे प्रेजेंट पे बताते हैं, प्रेजेंट दे आर शोइंग। एंड रिपोर्टेड वर्ब स्पीच का जो कॉलम है सेकंड कॉलम, दैट सेकंड कॉलम देयर आर द 4 कॉलम्स, लेकिन 2 ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये दूसरा जो कॉलम है दैट इज शोइंग द चेंजेस, दैट इज शोइंग द चेंजेस इन द फ्यूचर इन द इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस। ओके, यू हैव टू चेंज इनटू द पास्ट टेंस। अब ये कब होगा? जब रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट में होगा तो ही पास्ट में होगा तो ही करना है। अगर सेज वहाँ पे हुआ तो इनको चेंज नहीं करना है, सेज नहीं, सेज में बदलाव नहीं होगा, सेड होगा तो ही बदलना होता है। ओके, देन हाउ टू आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं तब क्या करते हैं? तो यहाँ पे अगर मैंने सेंटेंस यूज़ किया कि आई एम हैप्पी, ओके, दैट वी हैव टू चेंज, तो उसको हम रिपीट कैसे करेंगे, किस तरह से? 3 तरीके से उनसे हम बदल सकते हैं। हाउ? द फर्स्ट वन इज़ दैट ही सेज दैट ही इज़ हैप्पी। अब मैंने आपको पहली लास्ट स्लाइड में ये बताया कि वी हैव टू दैट, यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है, ओके, ही सेज है, ही सेज अगर होता है तो ये इज़ नहीं बदलता, ये प्रेजेंट टेंस में बदले, ये प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट है तो सेज आता है तो वहाँ पे हम बदलते नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो है आई एम हैप्पी, दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर हिम, ये उसका स्वभाव है, वो उसकी क्वालिटी है। तो जब किसी क्वालिटी के बारे में आता है तो उनको हम चेंज नहीं करते, दैट वी हैव टू रिमेन देम एज इट इज़। तो ही सेज दैट ही इज़ हैप्पी, ही हैज़ सेड, ये प्रेजेंट ही है, ओके, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, तो देयरफॉर ही इज़ हैप्पी। तो उसको ही वॉज हैप्पी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल 3 सेंटेंसेस, द फर्स्ट ऑल 3 हैविंग द प्रेजेंट टेंस, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो। तो अब यहाँ ही सेड आएगा तो ही हमको सबको पास में लेके जाना है। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ टू यूज़ द रिपोर्टेड स्टेटमेंट्स। इटर्नल ट्रूथ अगर होगा तो इटर्नल ट्रूथ मतलब जो कोई एक्सटर्नल इमॉर्टल ट्रूथ है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ट्रूथ नहीं बदलता। उसको कैसे बदल पाएंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी कल भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, द बॉय इज टेलिंग दैट द अर्थ इज गोज राउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट ट्रूथ विल नॉट बी चेंज, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ही सेड द बॉय सेड द अर्थ वॉज गोइंग अराउंड द सन, ऐसा उसको नहीं बदल सकते। वेंट अराउंड द सन नहीं कर सकते, तो गोज ही आएगा, वो आज भी चल रही है और कल भी चल रही थी, ठीक है। तो हाउ विल बी चेंज दिस? द सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे हम सिंपल प्रेजेंट में रहने देंगे, पास्ट वगैरह नहीं बनाएंगे। वाई? तो हाउ विल बी चेंज दिस? किस तरह से बदलेंगे उसे? द बॉय सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन, यहाँ सेड का सेड किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा का निकाल के उसकी जगह पे दैट यूज़ किया, एंड द सेंटेंस विल बी एज इट इज़। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी अगेन, यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन इज व्हाट? बिकॉज इट्स एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू सेंटेंसेस हियर। एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन जो है वॉज वेयर जो है सारे WH वर्ड, दे ऑल आर द रिलेटिव प्रोनाउंस को अगेन, बिकॉज दे आर कनेक्टिंग to the 2 sentences, making the relationship, describing the relationship between the 2 sentences. How? He said I am tired, तो उसका हम चेंज करते हैं, he said that he was tired। अब ये tired का जो है एक मोमेंट के लिए, तो वो हमेशा के लिए था नहीं, इसलिए वो प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा। अगेन सेड टू अगर यूज़ होता है, ओके, नोट करना है हमें कि अगर सेड टू होता है तो सेड टू का हम टोल्ड करते हैं, लेकिन टोल्ड जब करते हैं तो सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। अगर वो क्वेश्चन होगा तो आस्क आएगा, रिमेंबर अगेन, सेड टू का आस्क हो जाएगा। अगर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, रिक्वेस्टेड, कमांड, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। और एक बार जैसे कि ही सेड टू, तो ये सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड लगा के क्या आएगा? ही टोल्ड हर दैट ही वॉज टायर्ड। तो वो ये जो
टेंस होने की वजह से, पास्ट टेंस होने की वजह से ये भी सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, ऑन एम कंटिन्यूस पास्ट में बदल जाएगा। एंड ही आई एम की वजह से, आई एम की जगह पे ही वॉज टायर्ड आ जाएगा। आई का हो जाएगा ही। ओके, अब ये ही कहाँ से आया? बिकॉज अवर सेंटेंस अवर subject is he, therefore the I is changed into he. Again the exercise is given there. Said Rohit, I shall be there in a time, said Rohit. अब ये सेंटेंस में रोहित जो है वो सब्जेक्ट है, I shall be there in a time, said Rohit. How will be changed there? It will change. Rohit said that he would be there in a time. तो ये जो रोहित है ये सब्जेक्ट है, और हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो यू हैव टू टेक दिस रिपोर्टिंग वर्ब ऑन द इनिशियल प्लेस एंड देन दिस सेंटेंस विल बिकम ऑन दिस लास्ट साइड। इसको पहले लाना है, हमेशा पहले आना चाहिए। रोहित सेड दैट, तो यहाँ पे सेड है तो सेड ही होगा, अगर सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो वी हैव टू यूज़ अ सेड हियर। अगेन ऑन द प्लेस ऑफ दिस डबल इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू यूज़ दैट। आई का हो जाएगा ही, बिकॉज रोहित इज़ अ बॉय, ही हो गया। शाल बी, मैंने आपको पहले कहा शाल बी अगर होता है शाल की जगह पे तो वी हैव टू यूज़ हियर वुड। ओके, शाल की जगह वुड हो जाएगा। शाल विल अगर होता है तो ये वुड में बदल जाएगा। बी है जैसा का वैसा रहेगा। देयर, तो देयर हियर अगर होता तो देयर हो जाता, लेकिन देयर का देर होगा, इन टाइम ही रहेगा। ओके, दिस विल बी द चेंज इनटू देयर। अगेन रिपोर्टेड क्वेश्चन जो है हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। वी विल सी द सेकंड पार्ट फॉर दिस अगेन, वेट फॉर दिस सेकंड पार्ट।